In the heart of the old city, where cobblestone streets echo with the footsteps of centuries past, the Grand Majestic Hotel stands as a silent witness to countless stories. But among its many secrets, one stands out above the rest. Room number 13, a chamber that doesn't exist on any map or register, yet is whispered about in hushed tones by those who know. Hidden at the end of a shadowy corridor, the door to room 13 is always locked, always cold to the touch, and always avoided by staff and guests alike. It's as if the very walls around it remember something the rest of the hotel has tried to forget. The air near the door is unnaturally chilly, even in the height of summer. Sometimes, late at night, faint whispers drift through the corridor, or the slow, eerie creak of a rocking chair can be heard, though no one is ever seen inside. No one lingers near it. Even the bravest staff hurry past, their eyes averted, as if afraid to meet the gaze of something unseen. Some say the shadows seem to stretch longer near that door, pulling at the edges of your vision. Stories swirl among the staff. Some claim a reclusive guest vanished without a trace, while others whisper of a tragic love affair that ended in heartbreak and despair. Old photographs and yellowed newspaper clippings hint at mysteries never solved. Whatever the truth may be, the legend of Room 13 has grown over the years, woven into the very fabric of the hotel. Guests exchange nervous glances, and the story is passed down from one generation of staff to the next. New employees are always warned, never approach the door, never listen to the whispers, and above all, never try to open it. The warnings are given with grave seriousness, as if breaking the rules could awaken something best left forgotten. The hotel treats Room 13 like a sleeping beast, dangerous, unpredictable, and best left undisturbed. Even the cleaning staff refuse to dust the handle, letting a fine layer of dust settle as a silent barrier. And so the whispers of room number 13 echo on, a constant, chilling reminder of the unknown that lurks behind a locked door, waiting perhaps for someone brave or foolish enough to seek the truth. The fear of room 13 isn't from one event, but a web of superstition and tragedy. 13 is an unlucky number, and the hotel's founders knew it, yet the room exists, an anomaly. The most persistent legend is of Ilara, a pianist who waited for her beloved in that room, playing mournful tunes until she vanished, leaving only an unsent letter. Over the years, misfortune followed. A businessman next door lost everything overnight. A staff member dared to stay nearby and suffered a breakdown, haunted by whispers. Management sealed the room, erased its number, and denied its existence. But this only fueled darker rumors. Now the fear is not just of ghosts, but of the unknown, the terror of a door that must never be opened. No one has entered room 13 in decades, but old blueprints and fading memories describe it as a small, opulent suite. Crimson velvet, heavy mahogany, a grand fireplace, and a narrow balcony. Even in its prime, guests felt it was a stage for tragedy, always cold, with a scent of withered roses. A gilded mirror above the mantel sometimes reflected sorrowful faces that weren't there. The door would lock itself, the handle icy to the touch, and the balcony windows opened on stormy nights. Ilara's piano, the centerpiece, was said to play by itself, echoing heartbreak. After the room was sealed, the strange phenomena seeped into the hallway. Cold walls, faint piano notes, and a sliver of light under the door. The room's design and stories have made it a perfect storm of psychological horror. सबसे पक्के सबूत होटल कर्मचारियों की गवाहियों में मिलते हैं, जैसे आर्थर, जो 40 साल से नाइट गार्ड है। 60 के दशक में उसने मास्टर की से दरवाजा खोला और एक गहरी उदासी में डूब गया। कमरे में कदम रखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन कोने से किसी औरत की आह सुनी। मारिया, हाउसकीपर, बताती है कि रूम 14 के सामने सफाई करते हुए उसने देखा कि 13 के दरवाजे का नॉब खुद ब खुद घूम रहा था। वो डर के मारे भाग गई। 2012 में रूम 12 में ठहरे मेहमानों ने रात में पियानो की उदास धुनें सुनी, जो दीवार के पार से आती थी। ऐसी कहानियां होटल में एक अनकहा नियम बना देती हैं। उस दरवाजे के पास तेज चलो, आंखें मत मिलाओ। आर्थर, मारिया और अनगिनत अनाम लोगों की कहानियां रूम 13 की दहशत को जिंदा रखती हैं। इतनी कहानियों के बावजूद सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है। तर्क से देखें तो रूम 13 की दास्तान में कई बातें शक के घेरे में हैं। कई बार लोग पुराने दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स में सच्चाई तलाशने की कोशिश करते हैं,
लेकिन उन्हें ठोस सबूत नहीं मिलते। पुरानी इमारतों में अक्सर ठंडी लहरें, रहस्यमयी धुंध और अजीब सी ठंडक महसूस होती है। अजीब आवाजें, ये सब पाइपलाइन या दीवारों की दरारों से हो सकता है। कभी कभी पुरानी लकड़ी की चरमराहट या हवा की सीटी भी डरावनी लगने लगती है। एलारा की कहानी का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता, न तो किसी रजिस्टर में नाम, न ही किसी अखबार में कोई खबर। शायद ये किरदार लोगों की कल्पना से बना हो या फिर किसी ने डर को और दिलचस्प बनाने के लिए कहानी घड़ी हो, ताकि होटल की अजीबियत को कोई चेहरा मिल सके। एक रहस्यमयी तस्वीर या कोई पुराना फोटो भी कहानी को और गहरा बना देता है। इंसानी दिमाग डर को कहानी में बदलने में माहिर है, और जब कोई एक डरावनी बात सुनता है तो वह उसे और बढ़ा चढ़ाकर आगे सुनाता है। और जब नए कर्मचारी को पहले दिन ही डरावनी बातें बता दी जाएं, तो वह हर छोटी छोटी बात में डर ढूंढने लगता है। तो हर आवाज भूतिया लगने लगती है। एक हल्की सी आहट भी दिल की धड़कन बढ़ा देती है। होटल का कमरा सील करना भी इस मिथक को और मजबूत करता है। जब कोई दरवाजा बंद और सील हो तो जिज्ञासा और डर दोनों बढ़ जाते हैं। असल डर उस कमरे में क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन कल्पना में वह डर कई गुना बढ़ जाता है। इसका नहीं, बल्कि उसके छुपे और मना होने का है। मना किया गया कमरा हमेशा सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। रहस्य ही असली राक्षस है, जो जितना छुपा उतना डरावना। बंद दरवाजा वही पिंजरा है जिसमें डर और जिज्ञासा दोनों कैद हैं। और यही वजह है कि सबको यकीन दिलाता है कि वहां कुछ है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है जो दिखाई नहीं देती। असली सवाल ये नहीं कि रूम 13 में भूत है या नहीं, बल्कि ये कि उसका डर कितना असली है। होटल के हर कर्मचारी और मेहमान पर इसका असर महसूस होता है। पुरानी सजावट, लंबी गलियां, हल्की रोशनी, सब मिलकर माहौल को और डरावना बना देते हैं। इंसानी दिमाग वैसे भी अंधेरे, बंद जगहों से डरता है। ये आदिम आदत है। ग्रुप साइकोलॉजी भी काम करती है। आर्थर जैसे अनुभवी कर्मचारी की कहानी नए लोगों में डर भर देती है, और ये डर होटल की संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। दशकों की कहानियां और आदतें एकदम से खत्म नहीं होती। अब ये डर होटल की कहानी का किरदार बन गया है। ग्रैंड मैजेस्टिक का असली भूत एलारा नहीं, बल्कि रूम 13 के डर का साया है। ग्रैंड मैजेस्टिक होटल के रूम 13 की कहानी रहस्य और इंसानी कल्पना की ताकत का बेहतरीन उदाहरण है। इस होटल के गलियारों में गूंजती फुसफुसाहटें और पुराने कमरों की खामोशी लोगों की कल्पना को और भी भड़काती है। हर बार जब कोई मेहमान इस कमरे के पास से गुजरता है तो उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी जरूर होती है, चाहे वो इसे माने या नहीं। ये कहानी बनती है अंधविश्वास, इमारत की बनावट, मनोवैज्ञानिक सुझाव और एक अच्छी भूतिया कहानी की जादूगरी से। कभी कभी होटल के स्टाफ भी अपने अनुभवों को जोड़ देते हैं, जिससे कहानी और भी रहस्यमय हो जाती है। इन सब का असर इतना गहरा है कि लोग खुद ही डर और रोमांच के बीच झूलने लगते हैं। असल में मायने ये नहीं रखता कि वो कमरा सच में अलौकिक है या नहीं। अब ये कहानी अपनी खुद की जिंदगी जी रही है। लोग अपने अपने अनुभवों और डर के हिसाब से इसमें नए रंग भरते रहते हैं। हर नई कहानी पुराने रहस्य को और गहरा बना देती है। ये हमें मान्यता और शक के बीच की नाजुक रेखा पर चलना सिखाती है। कभी कभी हम खुद तय नहीं कर पाते कि हमें किस पर यकीन करना है, अपने तर्क पर या दूसरों की कहानियों पर। हमें दूसरों की कहानियां सुननी चाहिए, उनके अनुभवों का सम्मान करना चाहिए और साथ ही तर्क से देखना चाहिए कि कैसे डर और ग्रुप थिंक हमें असलियत से भटका सकते हैं। जब कई लोग एक ही बात दोहराते हैं तो वह सच लगने लगती है, चाहे उसकी कोई ठोस वजह ना हो। मकसद रहस्य का जादू खत्म करना नहीं, बल्कि समझना है कि वो जादू आता कहां से है। डर और जिज्ञासा दोनों मिलकर इस कहानी को जिंदा रखते हैं। रूम 13 का बंद दरवाजा एक आईना है, जिसमें हम अपनी चिंता और उम्मीदें देखते हैं, और यही इस कहानी का असली रहस्य है। शायद असली भूत कमरे में नहीं, बल्कि हमारी सोच